Don't leave the cabin, Captain Kumar warned his children. Rohini was fast asleep, wedged in tightly between the pillows. Knocked out by seasickness pills, I bet, Vishal muttered. Hope I won't need them myself. It would never do to get seasick just as he was getting his sea legs. केबिन के बाहर मत निकलना, कैप्टन कुमार ने अपने बच्चों को चेतावनी दिया। रोहिणी गहरी नींद में सो रही थी। वो तकिए के बीच में फंसी हुई थी। विशाल बड़बड़ाता है, जरूर इसने सी सिकनेस की दवाइयां ली होंगी, तभी इस प्रकार सो रही है। उम्मीद करता हूं कि इन दवाइयों की जरूरत मुझे न पड़े। और वह ऐसा कहकर उस चलती हुई शिप पर खुद को बैलेंस करने की कोशिश करने लगा। He looked helplessly around at the cabin. Bed lamp seemed to have broken loose. Drawers and books came crashing down on the ground with every lurch, while tables and chairs turned cartwheels. Even the fridge has started a solitary jig across the floor. Suddenly, there was an alarming crash on the starboard side of the ship. वह कैबिन के चारों तरफ असहाय रूप से देखता है। कैबिन की सारी चीजें टूट फूट रही होती हैं। हर एक झटके के साथ ड्रॉवर्स और बुक्स जमीन पर नीचे गिर रही होती हैं, जबकि टेबल और चेयर्स उल्टे पड़े हुए होते हैं। यहां तक कि जो फ्रिज था वह भी इधर से उधर फ्लोर पर स्लाइड कर रहा होता है। तभी बाहर से कुछ टूटने की आवाज आती है। विशाल peered out through a porthole. He gasped. Mountains of waves seemed to be descending savagely on them. The Trishna, only 8,000 tons big, rose high and was tossed down mercilessly. Every punch from the waves seemed to send her reeling. As she shuddered and groaned, it seemed as if she might break up. Now, sea and sky turned into a watery blur. The full fury of the typhoon was coming. Vishal's hands turned cold and clammy. विशाल ने पोर्ट होल के माध्यम से बाहर देखा। जहाज में जो गोल गोल खिड़कियां होती हैं उसे हम पोर्ट होल कहते हैं। वह बाहर का दृश्य देखकर हांफने लगा। पहाड़ जैसी ऊंची लहरें शिप से टकरा रही थी। तृष्णा, जो कि केवल 8,000 टन्स की थी, लहरों के साथ ऊंचाई पर जाती और फिर बुरी तरह से नीचे आ जाती। लहरें बार बार शिप को उछाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लहरों का हर एक पंच उसे अपने चपेट में ले रहा हो। जैसे वह कपकपा रही थी और कराह रही थी। देखकर लग रहा था कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब समुद्र और आकाश दोनों ही पानी के धब्बों में बदल गए थे। अब तूफान पूरी तरह आवेश में था। विशाल के हाथ ठंडे हो गए थे और अकड़ गए थे। Two loud bangs followed. Forgetting his father's instructions, the boy raced frantically up to the bridge. Captain Kumar was pacing up and down, giving crisp instructions to reduce speed and change direction. He nodded at Vishal. We are going off course. Some of the cargo is damaged and the gangway broken loose. That's probably what you heard. It's dragging by its wire ropes in the water and hitting the ship side hard. दो जोरदार धमाके हुए। अपने पिता के निर्देशों को भूलकर विशाल भागते हुए
ब्रिज पर जा पहुंचा। कैप्टन कुमार तेजी से ऊपर नीचे मूव कर रहे थे। वो शिप की स्पीड कम करने और दिशा बदलने के लिए निर्देश दे रहे थे। उन्होंने विशाल को देखकर अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हम वापस जा रहे हैं। कुछ माल क्षतिग्रस्त हो गया है और गैंगवे ढीला हो गया है। गैंगवे अपने तार रूपी रस्सियों से खींचा जा रहा है और शिप से जोर जोर से वापस टकरा रहा है। गैंगवे एक ब्रिज होता है जो कि शिप पर चढ़ने और उतरने के लिए लगाया जाता है। The Trishna veered slowly to her right, buffeted by furious winds. Vishal now found it difficult to stand. He had to hold tight onto the rail of the bridge to keep himself from being hurled down. तृष्णा ने धीरे धीरे अपनी दाहिनी ओर टर्न लिया। प्रचंड हवाओं ने उसे घायल कर दिया। विशाल को अब खड़ा हो पाना मुश्किल लग रहा था। उसने ब्रिज के रेलिंग को काफी मजबूती के साथ पकड़ा था ताकि वह गिर न जाए। Above the din of the wind and the waves, there was a terrifying sound once again on the starboard side. Suddenly, it seemed to Vishal that all hell had broken loose. Alarms and bells rang shrilly around, and emergency stations were called. People were rushing towards the engine room. Vishal crept into a corner out of the way, his heart pounding as loudly as the waves. हवा के झोंके और लहरों के शोर के ऊपर एक बार फिर से शिप के दाहिने तरफ से भयानक आवाज आ रही थी। शिप के दाहिने भाग को स्टारबर्ड कहते हैं। अचानक विशाल को ऐसा लगा कि शिप के सारे पार्ट ढीले हो गए हैं। अलार्म्स और बेल्स इधर उधर हो गई थी। आपातकालीन स्टेशनों को कॉल किया गया। लोग इंजन रूम की ओर भाग रहे थे। विशाल रेंगते हुए रास्ते के एक कोने में चला गया। उसका दिल तेज लहरों की तरह तेजी से और ऊंची आवाज के साथ धड़क रहा था। A steel angle from the gangway had pierced the ship's side. Water was pouring into the engine room. Captain Kumar immediately ordered course to be altered. Yet there was every risk of the ship overturning. As water gushed in, Vishal heard that attempts were being made to plug the leak, but with little success. Every time the plugs were pushed ferociously back. The water level was now rising in the engine room. Pumps were put on to drain out the water, but even this was not effective. गैंगवे के एक स्टील के कोण ने जहाज में छेद कर दिया था। इंजन रूम में पानी घुस रहा था। कैप्टन कुमार ने तुरंत मार्ग को बदलने का आदेश दिया। फिर भी शिप के पलटने का खतरा था। जैसे ही पानी घुस रहा था, विशाल ने सुना कि लीक को रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सफलता काफी कम मिल पा रही थी। जितनी भी बार छेद को प्लग से बंद किया जा रहा था, हर बार प्लग क्रूरता के साथ पानी की लहरों के द्वारा पीछे ढकेल दिया जाता था। इंजन रूम में अब पानी का लेवल बढ़ रहा था। पानी को निकालने के लिए पंप लगाए गए थे, लेकिन यह भी प्रभावी नहीं था। चीफ इंजीनियर बोस, वर्किंग feverishly in his boiler suit,
made an urgent report to Captain Kumar. Captain, if we cannot stop the water level from rising within 10 minutes, the water will enter the machinery and I will have to stop engines. चीफ इंजीनियर बोस, जो कि अपने बॉयलर सूट में उत्तेजित अवस्था में काम कर रहे थे, उन्होंने कैप्टन कुमार को एक अर्जेंट रिपोर्ट दिया। उन्होंने कहा, कैप्टन, अगर हम 10 मिनट के अंदर पानी के स्तर को बढ़ने से नहीं रोक पाए तो पानी मशीनरी में प्रवेश कर जाएगा और मुझे इंजन को बंद करना पड़ेगा। Captain Kumar was in a panic. It was suicidal to stop the engine in these weather conditions. It was imperative to do everything possible to keep the ship moving. Meanwhile, Sparks transmitted an emergency signal about the danger to the ship. Vishal could feel his knees wobbly. कैप्टन कुमार घबराहट में थे। इन मौसम की स्थितियों में इंजनों को रोकना सुसाइड करने के समान था। शिप को चलते रहने के लिए हर संभव कोशिश करना अनिवार्य था। इसी बीच स्पार्क्स ने शिप के खतरे के बारे में एक आपातकालीन संकेत दिया। विशाल अपने घुटनों को डगमगाता हुआ महसूस कर रहा था। He was reminded suddenly of a boating incident in Okhla, when he had felt similarly weak in the knees. The boat had developed a leak. As water gushed in, it had to be brought near the bank. They had all jumped out into the shallow water, and the boat was tilted to expose the leak. This made it easier to plug. Vishal went urgently to his father. It was an idea. विशाल को अचानक ओखला में घटित एक बोटिंग इंसिडेंट याद आ गई। जब उसने घुटने में इसी तरह कमजोरी महसूस किया था। बोट में एक छेद हो गया था। पानी के तेज बहाव के कारण उसे बैंक के पास लाना पड़ा था। वो सभी शैलो वाटर यानी कम पानी में कूद गए थे और लीक को एक्सपोज यानी कि उजागर करने के लिए बोट को एक तरफ झुका दिया गया था। इससे प्लग लगाना आसान हो गया था। विशाल तुरंत अपने पापा के पास गया। इट वॉज एन आइडिया, यह एक विचार था। कैप्टन कुमार heard him in silence. He nodded quickly. You are right, my boy. It is very risky under the circumstances, as the Trishna may even turn over. But it is the only way left. We will list the ship to expose the hole in her side. He was already barking sharp orders into the phone. Water in the bottom tanks was being shifted. In a short while, the Trishna leaned heavily to one side. कैप्टन कुमार ने उसे ध्यान से सुना। उन्होंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो मेरे बेटे। यह परिस्थिति काफी जोखिम भरा है, क्योंकि तृष्णा भी पलट सकती है, लेकिन यह एकमात्र रास्ता बचा है। हम छेद को उजागर करने के लिए शिप को एक तरफ झुकाएंगे। वह पहले से ही फोन में तेज आवाज में ऑर्डर दे रहे थे। नीचे के टंकियों में पानी को शिफ्ट किया जा रहा था। थोड़ी ही देर में तृष्णा एक तरफ जोर से झुक गई। डाउन इन द इंजन रूम, वाटर गश्ड इन only at intervals now. Chief officer and his men made a wooden plug. This time, 5 people held it in position with all their might. They blocked it in with cement. At last, it held tight.
There was a cry of relief as pumping operations began to dry out the engine room. अब इंजन रूम में नीचे पानी धीरे धीरे भर रहा था। चीफ ऑफिसर और उनके लोगों ने एक लकड़ी का प्लग बनाया। इस बार 5 लोगों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत के साथ शिप को टिल्टेड पोजीशन में पकड़ रखा था और उन्होंने छेद को सीमेंट से बंद कर दिया। अंत में वह काफी टाइट हो गया। जैसे ही पंपिंग ऑपरेशन से इंजन रूम सूखने लगा, लोगों के बीच राहत की चीख गूंजने लगी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार ये 5 लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं इस होल को बंद करने के लिए। That was a near one, exclaimed Captain Kumar as he stepped into the cabin some hours later, throwing off his raincoat. But your idea worked, Vishal. Perhaps that saved us. Latest weather reports show that Typhoon Elsie is moving away. The barometer is rising and the wind is reduced. We would all do with some rest after that battering, even though we are 12 hours late. He smiled wearily at the children. We are back on course. The damage is not as bad as we feared. यह काफी करीबी मामला था, कैप्टन कुमार ने कहा, जैसे ही उन्होंने कुछ घंटों बाद कैबिन में कदम रखा और अपना रेनकोट उतारकर फेंक दिया। लेकिन तुम्हारा आइडिया काम कर गया विशाल। शायद उसने हमें बचा लिया। लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट से पता चला है कि टाइफून एल्सी हमसे दूर जा रही है। अब बैरोमीटर राइज कर रहा है और हवा भी कम हो गई है। हम सब 12 घंटे लेट हैं, पर हमने उस भयानक तूफान को हरा दिया है। वो अपने बच्चों को देखकर स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हम लोग फिलीपींस की ओर जा रहे हैं। ओह, थैंक गॉड, beamed Rohini in relief, who hadn't stirred from her bunk at all. Do you know, my stomach has stopped churning. Maybe I have got my sea legs after all. रोहिणी अब नींद से जग चुकी थी। उसे तो शायद पता भी नहीं था कि शिप पर क्या हुआ। उसने कहा, थैंक्स गॉड, अब मेरे पेट का दर्द खत्म हो चुका है। वह कहती है, फाइनली, ऐसा लगता है कि मुझे सी लेग मिल गया। विशाल्स लेग्स वर स्टिल उबली। हाउ क्लोज they had been to the eye of the storm. What a tale for the boys at school. लेकिन विशाल के पैर अब भी कांप रहे थे। वो लोग तूफान के कितने करीब थे। उसके पास अब स्कूल के बच्चों को सुनाने के लिए कितनी अच्छी कहानी हो गई। In a while, the dark forms of the islands of the South China Sea loomed ahead. The turbulent spirit of the sea seemed to be soothed. The wind had died down as if by a miracle. Now indeed it would be smooth sailing. साउथ चाइना सी का वो डरावना रूप अब उनके सामने से हट चुका था। अब सी का उथल पुथल मचाने वाला आत्मा भी शांत हो गया था। हवा एक चमत्कार से मानो मर गई थी, यानी कि थम गई थी। अब वास्तव में स्मूथ सेलिंग यानी कि सहज नौकायान हो रहा था। तो हमने इस कहानी से यह सीखा कि इंसान को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेना चाहिए। With this, the chapter ends.
See you again in next video. Till then, goodbye.